So good morning students, welcome in our channel ललित NCERT ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो आपके अपकमिंग प्री बोर्ड एग्ज़ाम और बोर्ड में आ सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। कंपेयरिंग रेशियो, जैसा कि आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर हम A1/A2, B1/B2 और C1/C2 के कोफिशिएंट को लेके चलेंगे। जैसे कि जहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन होते हैं विच इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। ओके, और इन लीनियर इक्वेशंस के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करके बताते हैं कि ये बोथ द लाइन्स आर विल बी पैरेलल और कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर। Means they have one solution, they have infinite solution or they have no solution. So before starting the question, हमको इससे कुछ जानना आवश्यक है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 को कंपेयर करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को लिखते हैं। इक्वेशन कुछ इस तरीके से है। इक्वेशन इज 5x माइनस 4y plus 8 equal to 0. Okay, this is the first equation, and the second equation is 7x plus 6y minus 9 equal to 0. So these are the both two equations. So first we have to comparing the coefficient of this two equations. So A1/A2 means we have, when we write here for comparing or after comparing 5/7 which is A1/A2. Okay, now B1/B2 which is minus 4/6 and C1/C2 which is 8/9. Okay, as you can see on the board, we have three types of relation. Here A1/A2 is not equal to B1/B2. Okay, as you can see that 5/7 is not equal to minus 4/6. So these equation shows first relation, means these are intersecting lines. This relation shows the lines are intersecting and they have exactly one solution. Okay, they have exactly one solution, as we can write here. Now if this equation shows second relation, which is the second relation? The second relation which is A1/A2. Okay, A1/A2, as you can see here, is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, which represent coincident lines and having infinite many solutions. So we can write here they represented coincident lines and they have infinitely many solutions. Okay, now the third relation here, if these equations shows the relation A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2. Okay, which means the both linear equation represent parallel lines and having no solution. Means the coefficient of linear equation shows the lines are parallel and they have
no solution. So in this type we solve this question. Here we got three types of relation by which we can exactly identify they have one solution, they have infinite solution, or they have no solution. Okay, one solution, infinite solution और no solution. यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर दीजिएगा, they have one solution. So in this way we solve this question. Okay, it is very important question. Sometimes एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है कैसे होगा क्या होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है. एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को अपनी तैयारी में जरूर करें, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, सो थैंक यू. नाउ वी सॉल्व अनदर क्वेश्चन. The question is about word problem. As you can see on the board, here we solve the question which is related to age problem. So the question is says that let the present of age of Jacob is x years and the present age of his son is equal to y years. Okay. So according to the question, he says that the age of Jacob will be after 5 years. So he says that will be means plus 5. Okay, you have to understood means will be means plus 5. Okay, now he says that the age of Jacob will be 5 years 3 times of his son, means x plus 5 equal to y plus 5. बिकॉज 5 साल बाद तो जैकब की एज में अगर 5 प्लस होगा तो उसके बेटे की एज में 5 प्लस होगा. और ही सेज दैट द एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, मीन्स x plus 5 equal to 3 into y plus 5. एज द इक्वेशन सेज दैट, देन हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x minus 3y equal to 10. Now in second condition he says that 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. Okay, 5 years ago means पीछे, मतलब पास्ट की बात हो रही है. तो यहाँ पर हम एज में 5 को माइनस कर देते हैं, which the equation will be x minus 5 equal to y minus 5. और he says that 7 times of his son means x minus 5 equal to 7 into y minus 5. ओके, नाउ इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. इसके बाद सॉल्व कर लेंगे इस इक्वेशन को. हम सॉल्व करके क्या होगा हमारा x minus 5 equal to 7y minus 35. देन x minus 7y equals to minus 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा माइनस का 30. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं. अब इन दो इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x और y फाइंड आउट करने हैं और हमारा आंसर आ जाएगा. देन x minus 3y equals to 10 and x minus 7y equals to minus 30. सब्ट्रैक्शन करेंगे, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y बच जाएगा. तो सॉल्व कर लेते हैं इसको. x से x कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया 4y equal to 40. देन y equal to will be 10. ओके, इसका मतलब जैकब के बेटे की एज हमें मिल चुकी है जो कि 10 ईयर है. अब हम इसी एज से जैकब की एज भी फाइंड आउट कर लेंगे. किसी भी इक्वेशन में आप y की वैल्यू को पुट कर दो और आपको जैकब की एज मिल जाएगी. x minus 3y equals to 10, x minus 3 into 10 equals to 10, माइनस 30 उस तरफ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 40. मतलब जैकब की एज, प्रेजेंट एज भी हमें मिल गई जो कि है 40 साल. ओके,
तो ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया है। जैकब की एज भी निकल गई है, उसके बेटे की एज भी निकल गई है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा डिजिट वाला क्वेश्चन जो होता है वर्ड प्रॉब्लम में, कि जिसमें कहा जाता है कि 2 डिजिट का नंबर है और उनके डिजिट्स आपस में चेंज कर दिए जाएं तो नंबर कुछ ऐसा हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। फाइंड द नंबर्स कहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस, क्योंकि हम किसी भी डिजिट की बात करेंगे तो उसमें यूनिट प्लेस भी होगा, 10th प्लेस भी होगा। क्योंकि अगर हम 2 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो इसमें यूनिट प्लेस भी होगा और 10th प्लेस भी होगा। लेट द डिजिट एट यूनिट प्लेस इक्वल टू x and let the digit at 10th place equals to y. So the number will be 10 into y plus x. जाहिर सी बात है, जब 10th प्लेस में डिजिट y है और यूनिट प्लेस पे x है तो नंबर विल बी 10y plus x. ओके, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट इज इक्वल टू 9, मीन्स x plus y इक्वल टू 9. Okay, he says that the sum of the digit is 9. Then again he says that 9 times this number is twice. 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Okay, so what we have to done? We have to done in this way. 10y plus x equals to 9. After reversing the digits, the numbers will be 10x plus y, and he says that the original number is 9 times of the number which is obtained by reversing the digits is 2 times. So 9 into 10y plus x equal to 2 into 10x plus y. अब we have to solve this question. Okay, we have to solve this equation. हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन, देखिए, देखते रहिए बोर्ड की तरफ को। तो आपका ये 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y हो गया। देन y बाई एक तरफ आ गए, x भी एक तरफ आ गया। इक्वेशन मिल गई 88y माइनस 11x। अगर पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड करते हैं तो 8y माइनस x इक्वल टू 0 आ जाएगा। देन वी हैव टू राइट हियर x इक्वल टू 8y, तो x बराबर 8y मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और इस x बराबर 8y को आप ऊपर वाली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो आपके पास हो जाएगा 8y प्लस y इक्वल्स टू 9, मीन्स 9y इक्वल टू 9, इट गिव्स y इक्वल टू 1। मतलब आपके पास 10th प्लेस की डिजिट आ गई है। अब इसी y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे और आपको x भी मिल जाएगा, विच इज 8, x इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 8 आ गई। ओके, अब हमने इन दोनों डिजिट को नंबर में पुट कर देना है जो कि हमने माना था। हमने माना था नंबर 10y प्लस x, तो वहां पर हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे 10 into 1 plus 8. Then we got ultimate answer 18. So the number will be 18. Okay, तो आज हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं वर्ड प्रॉब्लम से लेकर लीनियर इक्वेशन का, जो एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, इसको जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिए।